All right, so let's go ahead with more questions on thermodynamics. An ideal gas at a pressure P is adiabatically compressed so that its density becomes n times of its initial value. So final density is n times of initial density. The final pressure of the gas will be, what is the final pressure they're asking you. अगर आपको याद होगा तो in the last session हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन हमने डिराइव किया था. सो पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो P1 V1 और मे बी बेटर इज टू फर्स्ट राइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो दिस इज मास अपॉन डेंसिटी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. मास तो कांस्टेंट है बिकॉज मास यू नॉट चेंज, आपने गैस ऐड नहीं किया, आपने गैस सब्ट्रैक्ट नहीं किया, देयरफॉर P अपॉन rho raised to gamma equals to a constant. Mass is constant इसलिए लिखा नहीं हमने. Therefore P1 rho 1 raised to gamma equal to P2 rho 2 raised to gamma. Therefore what is given to you is rho 2 is n times of rho 1. So P1 upon rho 1 raised to gamma equal to P2 rho 2 is n times of rho 1 raised to gamma. So this is equal to P1 rho 1 raised to gamma equal to P2 upon n raised to gamma. Rho 1 raised to gamma cancel or cancel. So therefore you have P2 equal to n raised to gamma times of P1 और P1 आपको बोला है P. तो ऑप्शन नंबर A, n raised to gamma into P. Next question. Okay, consider two containers A and B containing ideal gases at the same pressure, volume and temperature. दो कंटेनर है, दोनों में आइडियल गैस है. So you have a container A and a container B, let us say. The gas in A is compressed to half of its original volume isothermally. तो इसमें इस केस में V2 is V1 by 2 और here also you will have V2 by V1 by 2 क्योंकि ऐसा बोला होगा आगे. While the gas in container B is compressed to half of its original volume adiabatically. सिर्फ इतना ही है. This is isothermal process. This is adiabatic process. Okay. The ratio of final pressure of gas in B to that of A is. So easy है. It is simple because you know here you will write down P1 V1 equal to P2 V2. यहाँ पे आपको फाइनल प्रेशर मिल जाएगा P2 is equal to V1 by V2 into P1 और यहाँ पे you will write down P1 V1 raised to gamma. सिर्फ मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ डैश डैश P2 डैश V2 डैश raised to gamma. तो P2 डैश equal to V1 by V2 dash dash or raised to gamma times of P1 dash, right? Good. और initial pressure same था, initial volume same था, initial temperature भी same था. Okay? तो इन दोनों को divide कर दो. P2 dash upon P2 is equal to, you will have V1 dash upon V2 dash raised to gamma times of P1 dash which is of course P, क्योंकि प्रेशर दोनों में सेम था. इनिशियल कंटेनर A और B में इनिशियल प्रेशर सेम था तो प्रेशर जो है P ही लिख रहा हूं मैं अपॉन P2, बट P2 इज V1 by V2 into P. तो P2 इज V1 by V2, मतलब यहाँ पे V2 और यहाँ पे V1 रेसिप्रोकल और अपॉन P. P कैंसल, कुछ नहीं है, दोनों का रेशियो लेना है. दैट्स ऑल आई एम डूइंग. तो P हो गया कैंसल. देयरफॉर यू विल हैव P2 dash by P2 equal to, now this is simple. ये V1 dash और V2 dash क्या बोला इन्होंने? You see, same volume, मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था? सेम. और फाइनल वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम, क्योंकि दोनों केसेस में फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल बाय 2, दोनों केसेस में. तो ये डैश डैश हटा दो यहाँ से, तो यू विल राइट डाउन V1 रेज टू
गामा और यहाँ पे V2 रेज टू गामा और ये है V2 और ये है यहाँ पे V1। तो नाउ इसको ऊपर लेके जाओगे तो V1 रेज टू गामा और V1 रेज टू 1 का ऊपर -1 और यहाँ पे आएगा V2 रेज टू गामा -1। तो फाइनली यू विल गेट P2 डैश बाय P2 इक्वल टू क्या है आपका V1 बाय V2 रेज टू गामा -1। बट लुक हियर V1 बाय V2 इज 2, तो ये आ गया आपका 2 रेज टू गामा -1 है क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुड क्वेश्चन, इजी है और इट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो a mass of an ideal gas of volume V and at pressure P undergoes the cycle of changes in the shown in the graph. मतलब it is going from Z to X, X to Y, Y to Z. So X से Y, Y से Z, Z से X, cyclic process है. At which point is the gas coolest and hottest? तो गैस का टेम्परेचर सबसे कम और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। बहुत सिंपल है, आइडियल गैस। डू यू रिमेंबर आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT, वेरी गुड। तो PV इक्वल टू nRT, nR कांस्टेंट होता है तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। तो जहां पे P और V का प्रोडक्ट सबसे कम वहां पे टेम्परेचर सबसे कम, जहां पे P और V का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तो कूलेस्ट एक काम कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल बाय द वे, बिकॉज यू जस्ट हैव टू टेक प्रोडक्ट ऑफ values of pressure and volume given to you. So coolest and hottest के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। Look at this point X. X पे V की वैल्यू क्या है? 1, लेकिन 1 क्या? This is where you can go wrong. यहाँ देखो, this is volume measured in terms of volume upon 10 power -4 है वो, अपॉन 10 पावर -4 है। तो एक काम करते हैं, व्हाट आई विल बेसिकली डू इज एक एक करके एक्स पॉइंट देख लेते हैं पहले। एक्स पॉइंट पे टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर इज 4 बट अपॉन 10 पावर 5, so it is 4 अपॉन 10 पावर 5 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका है वॉल्यूम 1, एक्स पे वॉल्यूम की वैल्यू 1 बट 1 अपॉन 10 पावर -4, तो ये आ गया आपका नीचे 10, तो 4/10 इज 0.4। बाकी कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमको वैल्यू नहीं पूछा है, हमको सिर्फ पूछा है वेयर इट इज हॉटेस्ट एंड वेयर इट इज कूलेस्ट। वाई पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू PV विच इज इक्वल टू Y पॉइंट पे प्रेशर इज 1 अपॉन 10 पावर 5 अपॉन 10 पावर 5 एंड वॉल्यूम इज 5 अपॉन 10 पावर -4, तो ये आ गया 0.5। और Z पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो अगेन यू विल हैव Z पॉइंट पे प्रेशर इज 1 upon 10 power 5, 1 upon 10 power 5 and here is 1 upon 10 power, तो 1/10 0.1। तो सबसे कम वैल्यू प्रोडक्ट के कहां पे आ रही है? तो कूलेस्ट एट Z, और सबसे ज्यादा कहां पे आ रही है? Y, तो हॉटेस्ट एट Y। तो Z एंड Y, ऑप्शन नंबर D, Z एंड Y, डन। Next question. Okay, again a simple question and interesting one. So the pressure temperature graph of ideal monatomic gas is shown in the figure. The corresponding PV diagram is, आपको प्रेशर वॉल्यूम सॉरी प्रेशर टेम्परेचर दिया है, आपको प्रेशर वॉल्यूम पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर इज ओरल एंड सिंपल, बट यू हैव टू पे अटेंशन एट 2 थिंग्स। एक, एरोस प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1।
दूसरा, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हो आइसोबारिक। तो आइडेंटिफाई करो। अब यू लुक 3 to 4, 3 से 4 जब जाएगा तो प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और लीनियरली कम हो रहा है। प्रेशर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड लीनियरली डिक्रीजिंग। मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर कब होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कौन सा लॉ था? नहीं, कौन सा लॉ था? Gay-Lussac's law. Pressure is directly proportional to temperature at constant volume is Gay-Lussac law. तो constant volume मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर ये आ गया आपका आइसोबारिक, फिर वापस से आ गया आइसोकोरिक, खत्म। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर मिलना नहीं चाहिए वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम you see, your 1 to 2, it should not be a curve, it should be a straight line because it should occur at constant volume, or arrow should go from 1 to 2, not from 2 to 1. तो देखो 1 से 2 constant volume पे हो रहा है क्या? Yes, right? तो 1 से 2 constant volume पे हो रहा है। 2 to 3 constant pressure पे हो रहा है? Yes. 3 to 4 again constant volume? Yes. And 4 to 1 again constant pressure. Option number B. Done. So I don't think you need to write this. You just have to understand this. Done. Next question. A sample of ideal monatomic gas is taken around the cycle A, B, C, A. थोड़ा गलत बोला है उन्होंने। A, C, B, A ऐसा बोलना चाहिए। A, C, PA. The work done during the cycle is. Do you remember how to find out work done from PV diagram? Area under the curve, मतलब area of the triangle. So work done is area of triangle ABC, that is 1/2 base. Base pressure तो constant है तो 3V minus V. तो base is 3V minus V. And height is 4p minus p because volume is constant, तो 4p minus p, तो ये half 2v और ये 3p कैंसल, तो 3vp या 3pv, ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन. A system is taken from state A to state B, no, to state C. So A से C via two different paths, A DC and A BC, as shown in figure. The internal energy at A is 10 joule. A point पे internal energy आपको दिया है 10 joule. Along the path, the amount of heat absorbed is along the path ADC. अगर ADC गए तो heat absorbed is 50 joule and the work done is 20 joule. क्योंकि definitely A से C जाना है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेफिनेटली वर्क डन होगा, तो वर्क डन is 20 joule and the amount of heat supplied is 50 joule. मतलब immediately you should recall first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. du not u here, क्योंकि आप बोलोगे यार u तो 10 जूल है, ठीक है. एनीवेज आगे बोला है whereas along path ABC heat absorbed is 36, the amount of work along path ABC is equal to. अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया था जब मैंने आपको बताया था if initial state and final states are the same. यहाँ पे भी दोनों पाथ से एक इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट C है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सेम, राइट. तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले मिल जाएगा ADC पाथ से, क्योंकि ADC पाथ का आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है. बोला है आपको ADC पाथ में आपको बताया है हीट एब्जॉर्ब्ड और बताया है वर्क डन. So definitely by applying first law of thermodynamics, so
According to first law of thermodynamics, you have dq. Okay, of course, I'm applying to which path? ADC. So dq ADC equal to du ADC plus dw ADC. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे in this case what you will get is du ABC. Change in energy through path ADC, not ABC, through path ADC is equal to dq ADC minus dw ADC. What is dq ADC? 50 and what is dw? 20. मतलब आ गया 30, right? But initial and final states are same. Initial and final states along the two paths is the same, and therefore what you will have is du ABC equal to du ADC, that is again 20 joule. 20 की 30 joule. 30 joule. तो इतना आपको पता होना चाहिए. Now it is easy. Amount of work done पूछा है. Now it is easy. Again you will apply float, first law of thermodynamics, delta Q ABC du ABC plus dw ABC. Therefore, dw ABC equal to dq ABC minus du ABC. ये 36 दिया है, if I am not wrong, 36. And this you, how much? 6 joule है क्या ऑप्शन में? हाँ, D है. So done. Next question. This is a joke. This already you know. Pressure temperature relation for adiabatic change. T raised to gamma minus 1. ऐसा था क्या? 1 minus gamma by gamma. हाँ, yes. भूल गए, चलो कोई बात नहीं. नो वरीज. अगर आप भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर एनीवेज. इतना तो याद ही है आपको, ये तो याद रहता ही है. दिस इज व्हाट यू रिमेम्बर. ओके, तो ये तो पता है आपको. मैंने बताया था कि अगर भूल जाओ तो कोई डोंट वरी. यू गॉट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं है, तो लाना पड़ेगा. कौन सा गैस है? आइडियल. आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी. वी इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी. gamma equal to constant. अब n और r constant है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट. कांस्टेंट को छोड़ दो, कुछ काम में नहीं आएगा हमारे. t रेज टू gamma और ये आएगा p रेज टू gamma इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट. ये ऊपर जाएगा तो माइनस gamma होगा, तो p रेज टू 1 माइनस gamma, t रेज टू gamma इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऑप्शन नंबर डी. तो simple. If you do not remember, you can solve it. Next question. In the given volume temperature diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है. इट इज लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड. लिटिल बिट. तो ऐसा है, यू हैव ओवर हियर टेम्परेचर, यू हैव ओवर हियर वॉल्यूम, यू हैव टू कर्व्स, मतलब स्ट्रेट लाइन हियर. इन दिस केस एक ऐसा है जिसका एंगल है θ1 एंड ऑफ कोर्स θ1 is less than θ2 and this line corresponds to P1. You have another straight line which is something like this, P2. This is θ2. तो डायरेक्टली P2 greater than P1 मत लिख देना. अगर डायरेक्टली लिख दिया तो -1 मिलेगा,
यू डोंट हैव टू राइट डाउन डायरेक्टली P2 ग्रेटर देन, दिखता है P2 ऊपर है इसलिए, नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं होता है। आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। डू यू रिमेंबर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन? पासिंग थ्रू ओरिजिन, what is equation of straight line passing through origin? Y equal to mx plus c नहीं, because c is 0 passing through origin, y equal to mx, तो v मतलब y और x मतलब t, तो y equal to mt ऐसा आएगा, राइट। स्लोप, तो स्लोप इज v by t, ये तो पता ही है आपको, स्लोप इज v by t, बट आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT, बट ये स्लोप है, रिमेंबर दिस इज स्लोप, और ये भी याद रखो कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा, ओके। तो बट PV इक्वल टू nRT, तो यू हैव देयरफॉर V by T फॉर्म में लाओ पहले, तो V by T इक्वल टू nR by P, nR by P which is equal to slope which is equal to tan theta definitely। यहां तक समझा? यहां तक सिर्फ इतना है कि ये स्ट्रेट लाइन है दोनों के दोनों, तो V is equal to slope into T, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, तो slope is V by T but PV equal to nRT, तो V by T is also equal to nR by P, that is equal to slope, right। इसका मतलब slope is inversely proportional to pressure, of course pressure is inversely proportional to slope, and slope is nothing but tan theta, जिसका थीटा ज्यादा उसका tan वैल्यू ज्यादा, मतलब प्रेशर कम। तो टेल मी किसका tan वैल्यू ज्यादा आएगा? P2 का, है ना, बिकॉज tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, तो प्रेशर P2 इज लेस देन P1, तो प्रेशर P2 is less than P1, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। A gas is compressed isothermally to half its initial volume, मतलब V2 is given by 2 isothermally, okay। The same gas is compressed separately through an adiabatic process, again half of its initial volume, then compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work. No, it cannot happen, क्योंकि दो अलग अलग फॉर्मूलाज थे, nRT log of V2 by V1 नेचुरल लॉग, और वो था एक nR अपॉन 1 minus gamma T2 minus T1, तो for sure this is not possible, okay। Which of the case requires more work will depend upon the atomicity of the gas। What is atomicity of the gas? मतलब बेसिकली सेम गैस बोला है तो अभी एटॉमिसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता है here, because same gas is there, तो I don't agree with this also। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, राइट, तो हाउ विल यू डू दिस? बेटर, आई फील इट इज बेटर दैट यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट इट्स ऑलवेज गुड, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको देखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, और दोनों के वर्क डन में अगर याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूं। वर्क डन इन आइसोथर्मल यू ऑलरेडी नो, आपको पता है ऑलरेडी, nRT नेचुरल लॉग ऑफ, राइट, यस। दूसरे केस में आपको पता नहीं होगा पर बता देता हूं, nR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 जब आप लिखते हो ना, उसको n अपॉन 1 माइनस गामा PF VF माइनस PI VI भी लिख सकते हो, PF VF माइनस PI VI भी लिख सकते हो आप। तो आई हैव गिवन यू अ हिंट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड सी। तो जब मैं असाइनमेंट बोल रहा हूं तो आई विल नॉट टेल यू इवन C and D they are right or wrong, तो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 gram of a gas occupies 22.4 liters at NTP. मतलब आपको वॉल्यूम दिया है इन लीटर्स. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV की वैल्यू दी है. दिस इज वैल्यू ऑफ CV. If the speed of sound at NTP is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure, मतलब CP पूछा है, given CV and speed, they're asking you what is CP. First of all, ये speed मतलब कौन सा speed? RMS speed. तो आपको पता होना चाहिए कि VRMS is equal to under root of 3RT by M. Okay, then आपको गैस के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कुछ बताया है क्या? बोला है क्या एनीथिंग? नो. सिर्फ 4 ग्राम ऑक्यूपाइज 22.4 एट एनटीपी और आपको कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी बता दिया. तो व्हाट विल यू डू? यू वांट सीपी. हाउ डू यू फाइंड आउट सीपी? हाँ, हाउ डू यू फाइंड आउट? क्या करोगे? VRMS दिया है, यहां से क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट CP? यस, आप बोलोगे CV पता है तो यू कैन से CP इज इक्वल टू CV प्लस R. खत्म. 5 plus 8.3 13.3, but there is no option. Ideal gas. आगे I want to know something more from your side. नहीं तो I'll again put this in assignment because I want to know if you remember formulas or not. क्या करेंगे? चलो यहाँ पर देख लेते हैं. R पता है? Yes. T पता है? पता है क्या T आपको? पता है. NTP. What is normal temperature? 273. Very good. यहाँ से M मिल जाएगा because you know what is. हाँ, तो एक एक करके पहले ये देख लेते हैं फिर आगे सोचेंगे. तो इसका स्क्वायर अगर करता हूं मैं, if I square this out, then you will have this. This implies you have 952 का स्क्वायर, जिसको मैं 950 ही मानने वाला हूं बाद में जाके. राइट, so this is 3 into 8.3 into 273 upon molecular weight M. राइट, तो देन अगर मैं इसको 95 मान लेता हूँ, 950 मान लेता हूँ, मतलब तो 95 का स्कोर तो पता ही होगा आपको, 9025. तो ये आ जाएगा 90250 रफली इफ यू टेक इट टू बी 950. उसका स्क्वायर लिख लिया हमने, इक्वल टू 275 इंटू 3. 250 इंटू 3 इज 750. ऊपर का 25 3 टाइम्स 75. 750 plus 75. 750 plus 75 is 825. 273 को मैंने 275 मान दिया, इंटू 3 कर रहा हूँ. 275 इंटू 3 कैसे कर रहा हूँ? 250 इंटू 3 कर रहा हूँ और ऊपर का 25 इंटू 3, मतलब 750 प्लस 75 825 और ये 8.3 है. तो अब 825 into 8 into 8. How do you do this? Into 10 कर लोगे 8250, into 2 करोगे 1650, माइनस कर लोगे 006. अरे 6 what? 66. तो 66, तो ये आ गया आपका 6600 रफली. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस. आई एम नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट वन, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे एग्जैक्ट की. तो यू कैन गेट M फ्रॉम हियर. M की वैल्यू मिल जाएगी. चलो, सम वैल्यू ऑफ M, कुछ तो मिल जाएगा यहाँ पे आगे. व्हाट विल यू गेट बाय फाइंडिंग आउट M?
CV पता है, CP फाइंड करना है, M से क्या मिलने वाला है? What are you going to get from the value of M? Do you also remember one more equation of VRMS in terms of K? In terms of K एक इक्वेशन था, ठीक है. Do you remember what is R in terms of K? No? K upon NA. R is K upon NA. ऐसा था क्या? Into NA. Okay, just a minute. So let me go back to basics of kinetic theory of gases. PV equal to nRT. N by NART. This was KB. So N KBT. So KB is R by NA. Correct? My question to you was very simple. I was asking you कि VRMS equal to root of 3 RT by M तो याद रखते हो. But what is R? So R is NA into KB under root of 3 NA KBT. Okay, this is K upon M. आगे I'll keep asking you unless you have right answer for me. I will keep asking you. मुझे आंसर चाहिए. क्या करेंगे आगे? NA by M is N by M. Okay, NA by M is N by M. बराबर. And KB फिर से क्या मिला? What did you get from here? Okay, once again think of it. VRMS दिया है तो उससे क्या मिलेगा आपको? मॉलिक्यूलर वेट मिल सकता है. और क्या मिल सकता है? बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट क्यों चाहिए? Why do you want molecular weight? To find what? To find what? How? Why do you want molecular weight? To find what? Ultimately क्या चाहिए आपको? CP. CV दिया है, आपको CP चाहिए, तो क्या करेंगे? How do you find it out? A simple question. Mass, volume. Mass and volume is given to you. Think. How do you define CP? नहीं, बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है तो look at the basics. If you do not remember, as I told you, I will keep doing this because मुझे basic formulas चाहिए. So wait a minute, stop speaking and understand what I am trying to say. क्या क्या दिया है? मास दिया है, वॉल्यूम दिया है. मास ग्राम में, वॉल्यूम लीटर्स में दिया है. You have CV. What else? You have VRMS. What else? R value. And they are asking you what is CP. तो CP का एक इक्वेशन in terms of all this, या फिर V से जो आपको मिल सकता है. आपको टेम्परेचर भी दिया है आपके पास because they have also told you NTP और टेम्परेचर भी है. तो CP का इक्वेशन जो बनेगा in terms of this quantities बनने वाला है. This is what I am telling you. So your assignment will be to make an equation of CP in terms of any of these parameters. क्योंकि ये given है. Temperature 273, mass is 4, volume is 22.4 liters. CV आपको दिया है, V दिया है, and R is also given to you. So for today, again, this is second assignment question.
आपको कंटिन्यूअसली फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू मेक इक्वेशन. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, VRMS will give you something and you can check what it gives you, और उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हो. Then next question. We have time, so I will take another question. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram. Thermodynamic processes. तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखना, क्योंकि you may end up getting confused here. So, okay, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, look at these processes carefully. तो प्रोसेस नंबर 1, ये प्रोसेस नंबर 1 है. ओके, y और x देखते हैं. अगर y पे मैं p लिखता हूं, यहाँ पे v लिखता हूं, तो दिस प्रोसेस बिकम्स आइसोकोरिक. गुड. तो प्रोसेस नंबर 1 इज आइसोकोरिक, मतलब p शुड मैच विथ c. तो p शुड मैच विथ c, ऑप्शन नंबर b और c में से एक. दूसरा प्रोसेस जो है ये ऐसा है ना. दूसरा प्रोसेस जो है इट इज गोइंग लाइक दिस. और ये जो लाइंस दी है आपको 300 केल्विन, 500 केल्विन, 700 केल्विन, 300, 500, 700, 300, 500, 700, these are isothermals, isotherms, सेम टेम्परेचर के लाइंस. जब सेकेंड प्रोसेस हो रहा है, is it going any through isotherm? No, that means it is not isothermal. तो कौन सा बचेगा? क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, आइसोबारिक नहीं, तो क्या बचा? एडियाबैटिक. प्रोसेस 2 इज एडियाबैटिक. तो Q should match with A, ऑप्शन नंबर B. खत्म. फिर भी एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं. प्रोसेस 3, do you see process 3 is exactly occurring around, I mean about this isotherm. तो प्रोसेस 3 is isothermal. R with D correct है. प्रोसेस 4 is isobaric. तो प्रोसेस 4 with B, so S with B. So that is the correct answer you will get. Okay, so that's it for today. Remember 2 assignment questions.